नमस्कार, न्यूज टुडे इंडिया का एक्सक्लूसिव लाइव ब्रॉडकास्ट स्वागत है। নিউজ টুডে ইন্ডিয়ার এক্সক্লুসিভ লাইভ ব্রডকাস্টে আপনাদের সকলকে স্বাগত। আমি জব্বার আলী, আমার সহপ্রতিনিধি দীপ্ত এবং তার পাশাপাশি গৌরবের সঙ্গে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে রয়েছি ইসলামপুর মুক্ত মঞ্চে। রাত পোহালেই ঈদ মিলাদুন্নবী বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদের জন্মদিন পালন হবে সাড়ম্বরে ইসলামপুরে। দীপ্ত, প্রতি বছরই আমরা দেখি যে কি বলবে প্রচুর মানুষের ঢল নামে। দেখো জব্বারদা, যেমনটা আমরা জানি আমাদের এখানে যেরকম রামনবমী হয়, সকল ধর্মের মানুষ কিছুটা হলেও মুসলিম ধর্মাবলম্বী যারা রয়েছে, হিন্দু যারা ভাইরা ওই মিছিল দিয়ে হাঁটে, তাদেরকে জল থেকে শুরু করে যাবতীয় খাদ্য সামগ্রী তারা কিন্তু শুকনা খাবার প্রদান করে। তার পাশাপাশি আমরা মিলাদুল নবীতেও সেটা দেখে থাকি, হিন্দু ভাইয়েরা যারা আছে তাদেরকে শুকনা খাবার থেকে শুরু করে জল থেকে যে সকল জিনিস প্রয়োজন পড়ে সেগুলো কিন্তু দেয়। ওই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি কিন্তু বজায় রাখার এবং বজায় রাখাই মূল, সেটা কিন্তু আমাদের ইসলামপুর একমাত্র বলাই চলে। অবশ্যই আমরা যে কথাটা বলবো, ইসলামপুরকে হচ্ছে সেই জায়গায় সেই আঙ্গিকে দেখলে নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান, তবুও বিবিধের মাঝে দেখো মিলন মহান, এই বার্তা মিনি ভারতবর্ষ ইসলামপুরে দেখা যায়। আপনাদের জানিয়ে দিই, এই ঈদ মিলাদুন নবী উদযাপন উপলক্ষে আজকে কিন্তু গোটা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে, বলা চলে দেশে বা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে, মহানবী বা বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদের জন্মদিন উপলক্ষে যেমনটা আপনাদের জানাবো, সেখানে কিন্তু আজকে ফাতিহা খানি এবং দরুদে পাক এবং কালাম পাকের তিলাওয়াতের পাশাপাশি অন্যান্য কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি আপনাদের জানিয়ে দিয়ে, আগামীকাল ইসলামপুর শহরে ঐতিহ্যপূর্ণভাবে হচ্ছে ঈদ মিলাদুন্নবীর যে শোভাযাত্রা, সেই শোভাযাত্রা বের হবে, যার একদম অগ্রভাগে সবসময় হচ্ছে আপনাদের জানিয়ে দিই যে অগ্রভাগে একদম যারা হচ্ছে পায়োনিয়ারিং করেন, সেটা অল ইন্ডিয়া রেজা কমিটি। আপনাদের জানানোর চেষ্টা করব, সেই অল ইন্ডিয়া রেজা কমিটির প্রতিষ্ঠাতা এবং সেই সঙ্গে প্রেসিডেন্ট মাসরুর আলম, তার উদ্যোগে এবং তার যে তনজিম বা সংস্থা, তার উদ্যোগে আগামীকাল ইসলামপুর যে মুক্ত মঞ্চ রয়েছে সেখানে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। পাশাপাশি সেখানে ফাতিহা খানির পরে অবশ্যই তাবাররুক তাকসিম করা হবে। আমরা একটু কথা বলে নেওয়ার চেষ্টা করব। শত ব্যস্ততার মধ্যেও কিন্তু মাসরুর ভাই এই মুহূর্তে রয়েছেন আমাদের সঙ্গে। আমরা তার সঙ্গে একটু কথা বলবো আগামীকাল কি কি কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে এবং সেই কর্মসূচিটাকে কিভাবে পালন করা হবে। मसरूर भाई, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद न्यूज़ टुडे इंडिया में, और आपको और आपके तंजीम को न्यूज़ टुडे इंडिया परिवार की तरफ से ईद मिलादुन नबी का बहुत बहुत मुबारकबाद। क्या कहना चाहेंगे कल के लिए? बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारे जो प्रोग्राम है इसको दिखाने के लिए आए। ये बहुत ही खुशी होती है कि हम लोग साल में एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मदिन को सब लोग, जितने भी धर्म के लोग सब कोई मिल के मनाते हैं। ये बहुत ही अच्छा त्यौहार समझिए कि सबसे ज़्यादा अगर कोई ऐसा त्यौहार है जिसमें अमन और शांति के साथ इतनी बड़ी तादाद में लोग रैली में, जुलूस में निकलते हैं, ये समझिए कि सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग पूरा अमन के साथ जुलूस हमेशा निकालते हैं। इस बार भी हम लोग का प्रोग्राम जिस तरह हर साल होता था उसी तरह से है। इस बार थोड़ा चेंजेस किया गया है कि इस बार बाबूजी के पास ज़्यादा टाइम नहीं है। जो हमारे पीर साहब है वो आते हैं आपके मार्केटिंग में, वो इस बार सुबह 9:30 बजे मार्केटिंग पहुँचेंगे, वहाँ पर फातिहा करेंगे, उसके बाद वो निकल जाएंगे। उसके बाद हमारी जो जुलूस हैं सब वहाँ से हमारे आपके पौने क्या बोले साढ़े ठीक 10 बजे एकदम जी ठीक 10 बजे हम लोग सभी जुलूस वहाँ से निकलेंगे मार्केटिंग से, 3 पुल होते हुए आश्रम पाड़ा, KMC मोड़, ओल्ड बस स्टैंड। मेला हटने वाला था, लेकिन हम लोगों ने भी मेले हटाने की कोशिश नहीं की, इसलिए कि मेला में बहुत बड़ा बड़ा गड्ढा बना हुआ है कि अगर मेला भी हट जाए तो उन गड्ढों को भरने में इन लोगों को टाइम लगेगा 4-5 दिन। तो हमने देखा कि मेला अगर हम लोग कोट मार्ट लेते भी हैं तो हमको कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि आज से लगभग 2 दिन पहले 4-5 दिन तक रेगुलर बारिश हुई, जिसकी वजह से मार्ट तो पूरा गीला हो चुका है। उसके बाद हम लोगों को भी बहुत परेशानी हुई कि हम लोग बहुत से ऐसे प्रोग्राम और करने वाले थे और बहुत सारे ज़्यादा इंतज़ाम करने वाले थे, लेकिन हमारा इंतज़ाम जो है फिर भी अभी भी बहुत ज़्यादा ही हम लोग कर रहे हैं, लेकिन जिस क्वांटिटी में करने का इरादा था वो इसलिए नहीं कर पा रहे कि 4 दिनों तक हम लोग लोगों के पास नहीं पहुंच पाए, बारिश की वजह से। जी, बारिश की वजह से। उसके बाद हमारे कुछ मेंबर्स है, उनका कुछ परेशानी आ गई है, किसी परेशानी की वजह से हम लोग भी थोड़ा वो लोग टाइम नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं आकर्षित कर पाए और बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुँच पाए। फिर भी देख रहे हैं आप हमारे कि हम लोग बहुत हद तक कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग खाने के बाद यहाँ से तबरुक तकसीम किया जाएगा। बिल्कुल, हाँ। फातिहा यहाँ पे जैसे ही जुलूस पहुँचेगा, यहाँ पे सलातो सलाम होगी, उसके बाद यहाँ पे दुआ पढ़ी जाएगी, दुआ मांगी जाएगी। दुआ मांगने के बाद यहाँ पे जो आप बाहर देख सकते हैं, मंच के बाहर एक हम लोग का टेंट लग रहा है, वहाँ से जो तबरुकात है हमारे, वो बिरयानी के तौर पर वो तकसीम किया जाएगा वहाँ से। उसके बाद
जो लोग भी आना चाहेंगे अंदर ब्लड डोनेशन के लिए एक कैंप बनाया गया है। यहाँ पे ब्लड जो लोग भी देना चाहते हैं उन लोगों से गुजारिश करेंगे कि वो लोग आकर ब्लड दें। ब्लड का प्रोग्राम का ब्लड डोनेशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे कुछ चीज़ें हैं, काबा शरीफ, मदीना शरीफ, बैतुल मुक़द्दस और जो आपका बगदाद शरीफ, ऐसे कुछ जगह हैं। करबला शरीफ की भी मज़ार है, वो हम लोग का यहाँ पे टेबल के ऊपर सजा हुआ रहेगा कि लोगों के दीदार के लिए। अच्छा, बस लोगों का उसका जियारत करेंगे। अगली बार मुँह मुबारक की जियारत करा रहे थे, इस बार नहीं करा रहे हैं, लेकिन इस बार दूसरी जो मुकामात है उसको हम लोगों ने बनाया है, उसका जियारत कराएंगे। और इधर ब्लड डोनेशन कैंप चलेगा लगभग 2 बजे तक चलने के बाद हम लोग हर साल एक बाइक रैली निकालते थे। इस बार बाइक रैली को प्रशासन के कहने पर और सुप्रीम कोर्ट का कोई गाइडलाइन है, इसको मानते हुए हम लोगों ने बाइक रैली को कैंसिल किया है। और जो उसके बदले हम लोगों ने जो जेल में कैद जो मुजरिम है, जो जेल में कैद जो कैदी लोग हैं, उनके लिए हम लोगों ने कुछ खाने का इंतज़ाम किए हैं। उसके बाद हॉस्पिटल में जो मरीज़ हैं, नए हॉस्पिटल और पुराने हॉस्पिटल में, उन मरीज़ और पेशेंट के लिए हम लोग कुछ खाने पीने का जो फल फ्रूट है उसका हम लोग इंतज़ाम करने वाले हैं। और बाद बाकी हमारे और भी कुछ इरादे हैं कि कुछ लोग, इस पर हम लोगों ने सोचा था कि डीजे जो है ये हमारे धर्म में बिल्कुल जायज़ नहीं है और बहुत ही मतलब जो लोग अच्छे लोग हैं उनको भी तकलीफ पहुंचती है उससे। जी, तो इसलिए हम बच्चे अभी शिरकत फरमाते हैं उसमें, तो उसमें भी प्रॉब्लम होता है। जी, बुरे लोग, बच्चों को बहुत परेशानी होती है, तो इसलिए हम लोगों ने उसको कैंसिल किया इस बार। कि इस बार हम लोग जो डीजे है उसको बैन कर रहे हैं। पूरे प्रशासन के साथ भी मिले हुए हैं, तो बहुत लोगों ने हमें फ़ोन किया। मैं आपके ज़रिए से मैसेज देना चाहूँगा कि सिर्फ डीजे का बंद है, बड़ा स्पीकर होता है, डीजे होता है वो बंद है। आप लोग छोटा स्पीकर होगा, उसके बाद हॉर्न होगा, स्पीकर जो ये आपका क्या बोल रहा है, बॉक्स, साउंड बॉक्स कर सकते हैं, उसमें कोई एतराज नहीं है। माइक कर सकते हैं, जिस तरह पहले निकालते हैं उसी तरह निकालिए। बस नाते पाक का दरूद शरीफ ये सब पढ़ सकते हैं। जी, नाते पाक, दुरूद शरीफ, नारा लगा सकते हैं, अपने मुंह से बोलिए। डीजे वाला साउंड नहीं होना चाहिए। हमें डीजे वाला साउंड से हमें तकलीफ है, हम लोग को अच्छा नहीं लगता है कि हमारे नबी की शान में उनके जन्मदिन पर हम निकले, जिसने अमन का पैगाम दिया था पूरी दुनिया को। पूरी दुनिया जिनकी बादशाहत को मानती थी कि वो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने साधारण सी जिंदगी बसर करके लोगों को एक अच्छा मैसेज देके गया। वो रहमतुल्लिल आलमीन थे, पूरे जहां के लिए रहमत बन के आए थे। तो हम जब उनकी जन्मदिन मना रहे हैं तो हमको उनके तौर तरीके ऊपर चलना है, बावजू होकर हमें निकलना है, सही तरीके से नारा दुरूद शरीफ लड़ना है, पढ़ना है, नारा लगाना है, उसके बाद सलातो सलाम पढ़ना है और जो दुआ है दुआ में शामिल होना है हम लोगों को। तो हम लोग सही तरीके से इस्लामी तरीके से मनाएंगे ताकि हम लोग को देखकर दूसरे लोग भी इससे सबक लें। और उम्मीद है कि जो लोग हमारे डीजे बंद को सपोर्ट कर रहे हैं, आगे जाकर दूसरे प्रोग्रामों में भी वो लोग, शादी में हुआ कोई दूसरे प्रोग्राम में भी डीजे को बैन करेंगे ताकि हमारा जो इलाका है ये अमन और शांति के साथ रहेगा। इस्लाम का मतलब होता है अमन और शांति, यानी शांति, शांति का पैगाम देना चाहेंगे। हर बार देखा जाता है कि पॉलिटिकल या फिर दूसरा कोई तंजीम जो होता है या फिर गैर मजहबी तंजीम भी होते हैं, वो लोग भी कह सकते हैं पानी का इंतजाम, शरबत का इंतजाम कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए, सबके लिए हिंदुस्तान का मतलब ही अमन शांति है कह सकते हैं। तो उन लोगों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं तो उन सबका शुक्रगुजार हूँ जो लोग पानी और शरबत का इंतजाम कर रहे हैं, क्योंकि हम जो देख रहे हैं कि 2-3 दिन पहले मौसम बहुत ख़राब था, बारिश हो रही थी, और अभी हम लोग देख रहे हैं कि बारिश तो बंद है लेकिन धूप इतनी तेज़ पड़ रही है कि लोगों को परेशानी हो रही है। लेकिन फिर भी परेशानी की कोई बात नहीं है। 1-1.5 घंटे का हमारा रैली है कि हम लोग जो है टाइम बोलते हैं, हम लोग ठीक 10 बजे बोले तो 10 बजे ही निकलेंगे जी। और 11-11:30 बजे तक यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ फातिहा होगी, उसके बाद लोग 1-1.5 बजे तक 2 बजे तक घर पहुँच जाएंगे। हम लोगों को तकलीफ नहीं देना चाहते और हमारे भाइयों का शुक्रगुजार है, जितनी भी तंजीमें, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन जो पानी का शरबत का इंतजाम कर रहे हैं लोगों के लिए, हमारे लिए उनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो लोग इंतजाम करें और अच्छे से इंतजाम करें। और अमन व शांति का जो ये शहर है इस्लामपुर, इसके यहाँ के लोगों को, यहाँ के लोग हम सबको मिलकर जो इस्लामपुर से बाहर लोग हैं उनके लिए दिलों में भी एक जज्बा पहुंचा कि इस्लामपुर के जो लोग हैं उन्होंने बहुत अच्छी तरह से एक रैली को निकाला, सबको मिलकर उसको सक्सेस किए, उसमें लोगों ने पानी शरबत का इंतजाम किया, सबने सबको मुबारकबाद दिया और डीजे को बैन किया, ये मैसेज पहुंचे। आपके तरफ से भी, ऑल इंडिया रजा कमेटी की तरफ से भी एक पोस्टर उस दिन, जिस दिन शांति बैठक हुआ था, उस दिन आपने किया था कि स्टॉप डीजे बैन डीजे। तो ये पैगाम सब तक पहुंचाना आप जरूर चाहेंगे। और जो लोग कह सकते हैं कि अपने मन मर्जी मुताबिक डीजे लाएंगे तो गवर्नमेंट की तरफ से या प्रशासन की तरफ से उन पे जरूर एक्शन होगा। तो उसके बारे में क्या कहना है आपको, क्योंकि आप जिम्मेदार इंसान हैं, एक जिम्मेदार तंजीम है, क्या कहना चाहेंगे? आपको कि मुझे नहीं लगता है कि अभी कोई डीजे वाला आएगा, क्योंकि कल डीजे जितने भी साउंड वाले थे सबकी मीटिंग हुई थी। अच्छा। तो उनके मीटिंग में मुझे कुछ देर बोलने के लिए मौका दिया था, क्योंकि मैं इस्लामपुर में था नहीं, उस वक्त मैं था आपका गैसल में। तो वहाँ से मुझे फोन आया था कि हम लोग मीटिंग में बैठे हैं, आपको थोड़ा कुछ लाइव बोलना है मतलब इसमें। तो मतलब ऑनलाइन में था उन लोगों के बीच में, मैंने उन लोगों को मैसेज दिया ये कि हम लोगों ने डीजे बैंड किया है,
बॉक्स बैंड नहीं किया जी। है। आप बॉक्स बजा Sound सकते हैं, system बजा जी, सकते साउंड हैं। सिस्टम बजा सकते हैं। म्यूजिक वो जो डीजे का सिस्टम है, डीजे का जो आपका मशीन है वो मशीन नहीं होनी चाहिए। डीजे का जो ढक ढक वाला आवाज़ है वो आवाज़ नहीं होनी चाहिए। और आप जिसको भी भाड़े पे दे रहे हैं अपना साउंड, उनको बता दीजिए कि वो डीजे वाला जो गाना होता है वो नहीं होना चाहिए, डीजे वाला जो नाच होता है जी, वो जी, नहीं जी। होना चाहिए। और जो दूसरे देश का है वो भी नहीं होना चाहिए। वो साउंड वाले को देखने की जरूरत है। जी। साउंड वाले और ही ये बहुत सारे लोग हैं कि यूट्यूब से डायरेक्ट चला जाते हैं तो उसमें तरह पता तरह ही की नहीं बातें चलता, आती तरह की हैं। बातें आती है। उसमें लोग उंगली भी उठाते हैं कुछ जी, लोग, जी। क्योंकि उंगली उठाने वाले उठाते रहेंगे। मैं अभी खामोश आपको बता नहीं रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग हैं जो अमन शांति को पसंद नहीं करते हैं। नहीं तो आश्रम पाड़ा मोड़ में हम लोग हमेशा गेट बनाते थे। अभी कुछ ने गेट बनाया था तो हमने टेंट वालों से बात करके उनके परमिशन लेकर उस गेट को हमने बनाया है। उसके ऊपर हमने झंडे लगाए हैं। तो उसके लिए भी किसी ने एसडीओ ऑफिस में शिकायत किया है। अच्छा, ये एक नेता ही है, छोटा मोटा नेता है, केएमसी मोड़ का ही है, जिसने मतलब एसडीओ ऑफिस में एप्लीकेशन दिया है कि एक झंडा हमारे गेट पे लगाया गया है। उनको पता नहीं है कि हमने उससे परमिशन लिया जिनका वो गेट है। अच्छा, अच्छा। जो टेंट वाला है उससे परमिशन लेके हमने उसको बनाया, उसमें झंडा लगाया है। सिर्फ एक झंडा लगा हुआ था, उसके लिए उन्होंने वो लोग एप्लीकेशन दिए थे इसमें। तो आप सोचिए, कुछ लोग हैं अमन के दुश्मन है, उनको क्या दिक्कत है। अभी पूजा के लिए 1 महीना बाकी है और हमारा रबी अव्वल तो बस कल ही है, तो 2-4 दिन रहेगा हमारा। उसके बाद हम लोगों ने खुद उनसे बात किया है। उन्होंने हमें बोला कि आप 31 तारीख 1 तारीख तक हम लोग नीचे खुद उतार देंगे। उन्होंने कहा टेंट वाले ने कि हम लोग ठीक है आप उतार दें, बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। तो उसमें भी किसी लोग को दिक्कत है, उसका नाम लेकर मैं रबी अव्वल खत्म हो जाए उसके बाद नाम लेके आए, क्योंकि ये खराब मैसेज जा रहा है। हम लोग कितना अमन और शांति के साथ कर रहे हैं, लेकिन कुछ रेगुलर पार्टी का नेता अगर छोटा मोटा केएमसी फिलहाल हम आपको फॉरवर्ड करेंगे वो नाम डिस्कस नहीं करने के लिए, क्योंकि अमन और शांति हम लोग बिल्कुल अमन और शांति के साथ निकल जाए, फिर हम लोग फॉरवर्ड करेंगे उसके जो बड़े नेता उनके पास वो कंप्लेन भी करेंगे हम लोग। जी। तो आप लोग का बहुत बहुत शुक्र गुजार है कि आप लोग देखने के लिए आए और हमारे मैसेज पहुंचाने के लिए आए कि हम लोगों के लिए इंतजाम कर रहे हैं। तो कल आप लोगों को भी पूरी न्यूज़ स्टूडियो इंडिया की टीम को और जितने भी न्यूज़ वाले हैं सभी को हमारी तरफ से इन्वाइट है कि कल आइए हमारे प्रोग्राम में शामिल रहिए। तबरुक लेने का या बिरयानी खाने का? तबरुक लीजिए, बिरयानी खाइए, ब्लड दीजिए, स्टेज में आइए, हमारे साथ जेल में चलिए, हॉस्पिटल में चलिए। बेशक बेशक, बिल्कुल आप आइए, हम लोग आपका दिल से स्वागत करेंगे और हम लोग चाहते हैं कि अमन और शांति का हम लोग पैगाम दें। ठीक, बहुत बहुत। मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। चलिए, अमन शांति का पैगाम देने वाला इस्लाम के प्रवक्ता या कह सकते हैं इस्लाम के फैलाने वाले महानबी या नबी करीम सल्लल्लाहु ताला हज़रत मोहम्मद का जन्म मुबारक या कह सकते हैं कि जश्न जन्मदिन जो मनाया जा रहा है वो अमन और शांति से इस्लामपुर के साथ साथ पूरे बंगाल या हिंदुस्तान में मनाया जाए। और कहीं भी कोई अफवाह अगर किसी के साथ हो या अफवाह फैले तो उस पर आप ध्यान ना दें, उस पर आप गौर ना करें। और जो बात कहेंगे अमन शांति से ही और बैठक से ही या शांति के साथ ही कोई प्रोग्राम को इनाकात करने से वो कामयाब बनता है। भले ही आप जितने बड़ा शख्सियत क्यों ना हो, अगर आप किसी तरह के एक गलत सोच लेके कोई प्रोग्राम को इनाकात करते हैं तो किसी तरह से कामयाब नहीं होता है। इसी तरह से हर छोटी बड़ी खबर, अपडेट, इन्फॉर्मेशन देखने के लिए जुड़े रहना पड़ेगा न्यूज़ टुडे इंडिया के साथ, क्योंकि न्यूज़ टुडे इंडिया मतलब सबसे पहले, सबसे तेज, पश्चिम बंगाल का मोस्ट लवेबल, मोस्ट ऑथेंटिक डिजिटल प्लेटफॉर्म, जहां हम कोशिश करते हैं कि जेन्युइन और ऑथेंटिक न्यूज़ और हर छोटे बड़े खबर जहां की प्राइम चैनल को पहुंचने का दिक्कत होता है या जहां प्राइम चैनल्स नहीं पहुंच पाते हैं उसको आप तक सबसे पहले और सबसे तेज पहुंचाने की कोशिश करें। अब तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए अनेक धन्यवाद, लेकिन बहुत जल्दी मिलते हैं कोई इंपॉर्टेंट या खास खबरें लेकर के न्यूज़ टुडे इंडिया में। तब तक मैं जब्बार अली, चीफ रिपोर्टर न्यूज़ टुडे इंडिया, आप सभी को और एक बार तहे दिल